This is the water crisis that's now struck the national capital that we are discussing about. The world's 20 largest cities under water stress are in India, with Delhi being second on the list. Delhi is facing a severe water crisis, with residents struggling to meet daily needs of sustenance and livelihood. According to the Composite Water Management Index by the Niti Aayog in 2019, Delhi has a daily water demand of 1,290 million gallons per day. The Delhi Jal Board currently produces 1,000 mgd, with the gap being met by groundwater reserves. Let's listen into some of the responses that's come in to this particular story so far first. मैं रहता हूँ यहाँ पे 90 से। पानी की समस्या जो चल रही है अभी चलती रहेगी, क्योंकि टैंकर आता है, लोगों के घर के आगे लगाया जाता है 500 लीटर की टैंकी, सब अपना भरते हैं। अंदर वाले कॉलोनी वाले को पानी नहीं मिलेगा तो वो कैमरे के आगे आगे बोलेगा ही। अभी पानी सप्लाई बोरवेल हो चुका है, सबके घर टोटी लगी है। अब सरकार डिसाइड नहीं कर रही कि झुग्गी बस्ती को पानी देना है या नहीं देना है। अब बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी। केजरीवाल तो बंद पड़े। अब केजरीवाल होते तो पानी मिलता, केजरीवाल को पहले बंद कर रखा है, तो पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पानी मिल रहा है उनको जिनके घर के आगे टैंकर रुकता है। अंदर वाले लोगों को बर्तन रखने की जगह नहीं मिलती, तो वो तो कैमरे पे आके बोलेंगे। मुझे नहीं मिलता, मैं तो बोलूंगा जी। बर्तन रखने की जगह नहीं, क्योंकि टैंकर जहाँ रुक रहा है वहाँ पहले से ऑलरेडी पानी 500 लीटर की टंकियां रखी हुई हैं, उनको पानी मिलता है और हमें पानी नहीं मिलता। टैंकर आ रहे हैं, टैंकर की कमी नहीं, टैंकर बराबर आ रहे हैं। पहले 6 आते थे, अब 12 आ रहे हैं। Now, amid a worsening water supply situation in the national capital, the Aam Aadmi Party has knocked on the doors of the Supreme Court over Haryana not releasing Delhi's share of water. Supreme Court came down heavily on the Delhi government over the prevalence of the tanker mafia and water wastage amid crisis in the capital, and asked what measures have the government taken here against them. On the issue of the tanker mafia, Delhi LG V.K. Saxena has directed the Delhi Police Commissioner to ensure the strict vigilance and monitoring along the Munnak Canal. Our compliance report is to be submitted within a week to the LG's secretariat. While a collusion of tanker operators, police and the government officials is controlling the water procurement and management illegally. Water is sourced from the illegal tube wells and bore wells, particularly in the Yamuna Khadar area of Wazirabad. Water meant for Delhi from the Munnak Canal is also siphoned off by tanker operators. Sources reveal that in June 2023, 1,323 tankers were available. This number dropped to 881 in March this year and increased to 1,211 in June. Tanker operators exploit the resultant water shortage, charging exorbitant fees, and the fee varies based on the tanker's capacity and the distance between the source and the supply. With that now, Delhi BJP President Virendra Sachdeva has also alleged that the Aam Aadmi Party government is involved in the tanker scam. Sachdeva has mentioned that 2 tankers are being operated under the name of the Aam Aadmi Party's Parliament Assembly Speaker, Sandeep Chaudhary. A retaliatory message is also seen from Delhi Minister Atishi, who has written to the LG Saxena urging an inquiry against the senior officials in the Delhi Jal Board. She alleges that these officials may have illegal ties with the tanker mafia. Meanwhile, Atishi claims that if the BJP government in Haryana provides water to Delhi, it would bring relief to all their residents. BJP leaders met the Delhi police chief and demanded the formation of a special investigation team and registration of an FIR over the alleged theft of water from the Munnak Canal and other sources by the tanker mafia. हम तो बहुत शुरू से ही कह रहे हैं, जब 2013 में 15 में आम आदमी पार्टी ने 350 पेज की केजरीवाल साहब एक चार्जशीट दिखाते थे शीला जी को लेकर के, और ये कहते थे कि हम सत्ता में आते ही इनके ऊपर FIR करेंगे, टैंकर माफिया है। आज उसी टैंकर माफिया का हिस्सा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दिल्ली के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। जितना पानी दिल्ली के लोगों को चाहिए उससे ज़्यादा पानी दिल्ली को मिल रहा है। हरियाणा और यूपी भी जितना डेजिग्नेटेड वाटर है उससे ज़्यादा पानी दे रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल के लिए कहा कि आप लगभग 150 क्यूसेक पानी दिल्ली को दीजिए।
पानी की कमी नहीं है, कमी है इनकी इच्छा शक्ति की, कमी है ईमानदारी की। इनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली प्यासी है, इनकी नॉन प्लानिंग के कारण दिल्ली प्यासी है, इनकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन दिल्ली प्यासी है। ये लोग अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि बड़े बड़े पाइप्स की लीकेज डेलिब्रेट है, वहाँ से लीकेज से टैंकर माफिया पानी भरता है, फ्री में पानी लेता है, आगे हजारों रुपए में बेचता है। तो दिल्ली की सरकार इस बात के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उनको, जो दिल्ली की जल मंत्री हैं, उनको इस बात के लिए इस्तीफा देना चाहिए, मानना चाहिए। सिर्फ संज्ञान लेने से काम नहीं होगा कि टैंकर माफिया हमें पकड़ में आया है, हमें समझ में आया है, हम सोचेंगे, हम करेंगे। इस बात से बाहर आकर के दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने का इन्हें देना चाहिए। आतिशी जी को दिल्ली को घर घर में नल से जल देना है। जल विभाग, जल बोर्ड उनके पास है। वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं, वो दिल्ली में ही भर रहे हैं। तो आतिशी जी, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? दिल्ली में जितना पानी दूसरे राज्यों से आता है उतना पानी उनको मिल ही रहा है, प्लस उससे भी थोड़ा सा ज्यादा पानी इस दौरान दिया जा रहा है। लेकिन जिन पाइप को आपने 9-10 साल में एक बार मरम्मत नहीं कराया, जिन पाइप से लीक हो रहे हैं, जिन पाइप में गटर के पानी मिल रहे हैं, उसका ठीकरा आप दूसरे पे कैसे फोड़ सकते हो? 15 साल कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट था और पिछले 9-9.25 साल से आम आदमी पार्टी के पास है। इसके बाद भी बहानाबाजी। तो आप चाहे कितनी भी लच्छेदार भाषा में अपने इस मुद्दे को दूसरे पर फेंकने की कोशिश करो, पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। कि जब एलजी भी कह रहे हैं बार बार, माननीय कोर्ट भी कह रहा है कि भाई दिल्ली वालों को पानी दो, तो दिल्ली को पानी देने की बात करना आपको गाली लगती है? अगर कोई अपराधीकरण होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो एसीबी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। पुलिस किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, अर्थात एलजी के पास है। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? माफिया की बात बीजेपी करती रहती, इन माफियाओं को तोड़ने का काम बीजेपी के पास ही तो है। वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट दिल्ली पुलिस है और तमाम और एजेंसियां हैं। तो एक बात, यानी कुल मिलाकर के विपक्ष को बदनाम करने का ये साजिश है, जनता को परेशान करके, और बीजेपी इस चीज से बाज आए। हरियाणा सरकार का एफिडेविट खुद ये कह रहा है कि वो सिर्फ 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं। तो एलजी साहब के पहले झूठ का पर्दा फाश हो गया। एलजी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की गलती है, वो मुनक कनाल मेंटेन नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार की गलती है कि मुनक कनाल में लीकेज हो रहा है। मैं एलजी साहब को ये बता दूं, मुनक कनाल की मेंटेनेंस, जहां से मुनक से पानी छूटता है डीएसबी और सीएलसी से, और जब तक वो हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है, पूरे इन दोनों कनाल सीएलसी और डीएसबी की मेंटेनेंस 100% हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है। दिल्ली सरकार जो पानी लेती है उसका पैसा देती है हरियाणा सरकार को, और मुनक